just a picture of the Multan city from where I belong, and this is my institute where I am working. So these are the four different ways we can define the hypertension. Not going into their definition, just to look at it, these are the four different ways we can define the hypertension. This is I copied from a BMJ editorial. It is not the strongest of the species that survive, not the most intelligent that survive. It is the one that is most adaptable to change. That is what we talk about the evidence based medicine. अगर आप देखें और से तो लास्ट आप देखेंगे कि ना आफ्टर एवरी 2 or 3 decades आपकी डिजीज़ की अंडरस्टैंडिंग भी चेंज हो जाती है, द मोड ऑफ ट्रीटमेंट बिंग चेंज. और फिर कुरान में आता है कि बेशक बीमारी भी हमने उतारी है और शिफा भी हमने उतारी है, और वो टाइम जब आप शफा तक पहुँचने में लगाते हैं, दैट इज़ द टाइम वेयर द डिजीज़ प्रिवेल. अगर आप टेंशन की प्रेजेंट छोड़े पास्ट की बात करें तो ये आज की बात नहीं है. 2000 साल से हमें पता है कि जो ना ब्लड प्रेशर जो है ब्लड इज इन द बॉडी एंड इट सर्कुलेट विद सम प्रेशर. बट द मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट विद द बुक फ्रॉम विलियम हार्वे. वी जस्ट rapidly going through it. Then the hypertension as a description come from Thomas Young 1808, and then 1896 the sphygmometer introduced by Riva Rocky, and then Nikoli Kotokovs described the sounds, the techniques, and then this is a very important statement. We look into it. 1931, John Hay, professor of medicine at Liverpool University, wrote that there is some truth in the saying that the greatest danger to a man with a high blood pressure lies in the discovery, because then some fool is certain to try and reduce it. So at present we all fools are over here and we are trying to treat it. If you just go through the different statement by the at that time the जो उस वक्त के अहम लोग थे जिन्होंने ये बातें की, just look into it. And then in 1949, बहुत पुरानी बात नहीं है, कंसेप्ट ये था कि 210 और 100 भी बहुत बुरा नहीं है, इसको ट्रीट करने की शायद ज़रूरत नहीं है. एंड देन यू कैन लुक इनटू इट. द JNC 1977 से शुरू हुई, एंड विद एवरी JNC यू सी कि जो ना डिस्क्रिप्शन बीइंग चेंज एंड द वे टू ट्रीट बीइंग चेंज. एंड देन वी हैव डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन गिविंग गाइडलाइंस. वी हैव AHA, ACC, ASH and different available. And then Pakistan Hypertension League in 2023, the last guidelines from Pakistan Hypertension League for the patient in Pakistan, how it been treated. Because topic is present, past and future of hypertension. Pakistan Hypertension League being founded in June 1997 in Karachi, affiliated with Hypertension League, and this is you see in the first available data from Pakistan जो 1998 में through PHL ही print हुआ, and the hypertension control at that time was only 3% in Pakistan. This is data from my city. Last year में we come across 230,000 patient जो different medical units में आए in cardiology, nephrology and neurology, which presented primarily because of hypertension causing that complications. गाइडलाइंस ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं. ये लगाने का मकसद सिर्फ ये था, ये दिखाने के लिए कि जनाब वो पहले कंसेप्ट क्या था ब्लड प्रेशर ट्रीट करने का और अब क्या आ गया व्हेन वी आर ट्रीटिंग 120/70. ये भी जो है ज़्यादा है, इससे भी कम होना चाहिए. सो करंट अंडरस्टैंडिंग हमारी क्या है कि इट्स अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स. टाइम कम है, इसको हम डिस्कस नहीं कर सकते. एंड वाई वी आर ट्रीटिंग हाइपरटेंशन बिकॉज इट इफेक्ट द आइज, इफेक्ट द हार्ट, इफेक्ट द किडनीज, ब्रेन एंड द माइक्रोसर्कुलेशन. दीज आर द कॉम्प्लिकेशन जिनको हम मरीज़ को इससे बचाने के लिए हम ब्लड प्रेशर को ट्रीट कर रहे हैं आजकल. तो दिस इज़ जस्ट टू कंपेयर विद दैट कि 210 110 जो है वो बुरा नहीं समझा जाता था, और अब वी आर टॉकिंग अबाउट लेस देन 120/70 जो ऑप्टिमल हम कहते हैं कि अब होना चाहिए. दिस इज़ जस्ट टू शेयर विद यू. दिस ईयर वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग अवॉर्डेड पाकिस्तान हाइपरटेंशन लीग एज अ बेस्ट ऑर्गेनाइजेशनल अवार्ड इन अ ग्लोबल कंट्रोल ऑफ हाइपरटेंशन. और पाकिस्तान हाइपरटेंशन लीग को दिस इज़ फर्स्ट टाइम, लास्ट 4 years से मिल रहा है, लेकिन दैट वाज द इंडिविजुअल एक्सीलेंस अवार्ड. दिस टाइम एज अ ऑर्गेनाइजेशनल एक्सीलेंस अवार्ड जो है वो पाकिस्तान हाइपरटेंशन लीग को अवार्ड किया है वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग ने विद 85 मेंबर कंट्रीज. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर विद ऑल ऑफ यू कि एट वेयर इंटरनेशनली वी स्टैंड. जस्ट टू बी अवेयर जब हम प्रेजेंट और पास्ट की बात कर रहे हैं तो दीज आर यू कैन सी प्रोफेसर फारूकी, द फाउंडर प्रेजिडेंट, एंड प्रोफेसर इसाक, द फाउंडर जनरल सेक्रेटरी सिटिंग विद अस, Professor Nazeem Iman and Professor Shakun Malik. These are the 4 which are still with us, and we still take advices from them. And then we have 3 members which will lose, Professor Maqbool Jafri, Professor Ijaz Vora and Professor Kalimuddin Aziz.
द टू मोस्ट रिसेंटली, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आई वांट कि जो ना एट द एंड ऑफ दिस सेशन जो है ना हम दुआए मग़फ़िरत भी हम कर लें, बिकॉज रिसेंटली वी लॉस्ट प्रोफेसर कलीमुद्दीन अजीज़ एंड प्रोफेसर एजाज वोरा। तो इस सेशन में जो कि ऑपरेशन पे हो रहा है, तो हम प्रेजेंट और पास्ट की बात कर रहे हैं, तो इट शुड बी आफ्टर दिस सेशन आई थिंक कि जो ना एक दुआए मग़फ़िरत भी होनी चाहिए इनके लिए। हम प्रेजेंट की बात करें, पास्ट की बात करें, फ्यूचर की बात करें, कुछ चीज़ें साथ रहेंगी ब्लड प्रेशर के हवाले से कि आपने मरीज़ को जो ना कंप्रीहेंसिवली एडवाइस करना है लाइफस्टाइल के बारे में, सॉल्ट इंटेक के बारे में, रेगुलर एक्सरसाइज के बारे में। एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चाहे हम प्रेजेंट की बात करें, पास्ट की बात करें या फ्यूचर की बात करें, पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो अनटिल दे नो हाउ मच यू केयर। और आपके मरीजों की आपके बारे में राय क्या होनी चाहिए? दे लिसन, लाइक माई इनपुट, आई फील सो मच बेटर, दे डोंट आर्ग्यू विद मी, रिस्पेक्ट मी एज अ पर्सन, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू मी, दे आर इंटरेस्टेड इन मी। आपके मरीजों की राय आपके बारे में ये है तो आपका मरीज़ ठीक भी होगा और आप भी जो है अपने ना सिर्फ ये दुनिया भी कमाएंगे, आगे आखिरत भी कमाएंगे। तो टू एंड, दिस इज़ द प्रेजेंट ट्रीटिंग हाइपरटेंशन, रिमेंबर अलारा एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल। तो हम करंट की बात करें तो एट प्रेजेंट जो हाइपरटेंशन कंट्रोल है पाकिस्तान में, दिस इज 11 to 14%। जो पहला डाटा हमारे पास आया था इन द पास्ट दैट वाज 3%। एट करेंटली 44% ऑफ द पॉपुलेशन being diagnosed with hypertension, 35% being treated, and only 11% at control. In future, we expect some much better than this one. Thank you very much.